Hello student of 8th class. In this video I am going to discuss about your 4th chapter, that is mineral and power resources. Mineral and power resources. Natural vegetation and wildlife in previous chapter, and in this chapter we will try to understand about these. Mineral and power resources. Mineral, it means khanij, power it means urja. You know that the world is in the pace of fast developing pace. And everywhere for human growth, human in industries and everywhere we need energy and we need a lot of mineral product. Then question is here that we will try to understand some dimensions. What is first? What is minerals? What is minerals? Minerals are naturally occurred substances that found on earth, or maybe on the surface of earth, or maybe deep inside the earth. Minerals are naturally occurred substances that may be found with a definite and in equal ratio composition. Maybe they found on the surface of earth, it means in igneous rock, and maybe in deep inside the earth in metamorphic rock. Rocks. I think you have studied in 7th class about rock. Maybe in your 8th class you will also find. Rock, there are 3 types of rocks. Igneous, sedimentary and metamorphic rock. Igneous rock, when magma extract and come out and cool down and solidified, become igneous rock. And all rocks contain a different type of minerals. All rocks contain, but mostly many minerals are found in igneous rock and metamorphic rock. Metamorphic rock deep inside the earth. Okay, I hope all of you have understood. Minerals are actually very most important valuable substances found in nature. Okay, minerals consist one or more element. There are about 118 elements are searched till now. Minerals, we do not get minerals in pure form. We get from deep inside the earth in form of ores. What is ores? Question is, what is ores? सपोज दैट हम आपको एक एग्जांपल याद दिलाना चाह रहे हैं कि सब एक मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा ऐसे एक पार्ट ऑफ पीस ऑफ वो है, कोई सब्सटेंस है और उसमें कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, तो उस वैल्यूएबल चीज़ का जिस पीस में पाई जा रही है वो ओर्स है. ठीक है, जैसे आयरन एक मिनरल है, ठीक है, फेरस मिनरल है, लोहा, आयरन. ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट. तो हेमेटाइट एक ऐसा ओर है जहाँ से हमें आयरन मिलता है. अब एक एग्जांपल बता रहे हैं. हम बचपन में कभी कभी शादी होती थी लोगों की, तो वो बैना आता था, ढोड़ी. अब उसको ढोड़ी कहते थे गांव में. ढोड़ी क्या होता था, इतना बड़ा ढोड़ी होता था, आटे का, चावल के आटे का बना रहता था. तो उसमें कुछ लोग कभी कभी क्या होता था कि उसमें सिक्के रख देते थे. 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्के रख देते थे. तो हम लोग जब खाते थे तो उसको हमारा उस ढोड़ी की वैल्यू कम होती थी, बल्कि उस 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू ज़्यादा होती थी. तो अगर उसको हम सिक्के को एक बहुत वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मान लें अगर, तो दैट इज़ मिनरल. और जो ओर है ना, वो इम्प्योर पार्ट है. अकॉर्डिंग मी दैट इज़ नॉट इम्प्योर, बट अकॉर्डिंग इन द व्यू ऑफ ए चाइल्ड दैट इज इम्प्योर. तो उसको क्या करते थे, फोड़ करके हम उस सिक्के को निकाल लेते थे. ठीक है, अभी जिस ढोड़ी में पता है कि हो सकता है इसमें 2 सिक्के, तो उसको फोड़ करके 2 सिक्के निकाल लेते थे. तो ऐसे ही मिनरल्स, चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे कॉपर हो, हर एक जितने भी मिनरल्स हैं हमें वो किसी एक ढोड़ी में मिलते हैं. उस ढोड़ी को हम फोड़ते हैं तो हमें मिलता है, वो हमें कॉपर मिल गया. ठीक है, तो ढोड़ी इज जस्ट लाइक ओर. सिमिलरली वी आल्सो get minerals from ore. Ore
is impure pre-part of mineral from when mineral extract. Okay, I think you have understood. Okay, ढोड़ी का एग्जाम्पल याद रखना, गांव में जाना पूछना छोटे छोटे बच्चों को, गांव के जो बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, शहर के बच्चे हो सकता है मैं भी ढोड़ी कम खाए होंगे, तो दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड. अब व्हाट इज मिनरल? इट इज टाइप ऑफ मिनरल. इफ यू let me write type of minerals. Second question is type of mineral. Types of minerals. Approximately near about 3000, above than 3000 minerals are identified and are in use by human being, modern human being. If we broadly classified the minerals, then we find two type of minerals. अगर हम उनको ब्रॉडली क्लासीफाइड कर दें तो हम उनको दो प्रकार से कर सकते हैं. ठीक है, पहला तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए टू टाइप ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट मेटालिक एंड सेकेंड नॉन मेटालिक. Do not take it's very in composition complex form. What is mineral? Simply mineral and power sources are separately described in your textbook. So what is mineral and type of mineral? ठीक, mineral, metallic and non metallic mineral. metallic and non metallic minerals के बारे में metallic साइंस में भी आप पढ़े होंगे, जिसमें चमक होती है, जो मजबूत होता है. ठीक है, जिसमें चमक होती है, जो मजबूत होता है, या फिर जो ऐसे मिनरल्स जो मेटल को कंटेंट करते हैं इन रॉ फॉर्म में. तो ओर्स जो होता है उनका मेटल में वो होता है. मेटल में ये जो ओर्स हैं ये क्या होते हैं, इसमें मेटल कनेक्ट होता है. और हम वी गेट मेटल सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर. ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयन, इट ये क्या है, मेटालिक है. लेकिन फर्दर भी मेटालिक मिनरल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस एंड नॉन फेरस. Ferrous and non-ferrous. Okay, ferrous metallic minerals, all minerals that contains ion. इसमें आयन रहेंगे. ठीक है, आयरन बोला जाता है, बट दैट इज आयन. ओके, दैट इज आयन. बट मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन नॉट आयरन, हम लिख दे रहे हैं नॉट आयरन. ठीक है, अब आयरन में कौन कौन कंटेन करते हैं? अगर मेटालिक मिनरल फेरस में अगर देखें तो मैग्नीज, सॉरी स्पेलिंग आई हैव टू चेक. मैंगनीज, गोल्ड और सिल्वर जो रहेंगे वो तो नॉन मेटालिक में आपके हो जाएंगे. ठीक है, क्रोमाइट, इसमें आपके हो जाएंगे गोल्ड, सिल्वर. ओके, लेड मीन सीसा, पीबी इसका फार्मूला होता है. कॉपर, ETC. Okay, these are non-ferrous metallic.
मेटालिक मिनरल्स हो गए। नॉन मेटालिक मिनरल्स according that name is suggested non-metallic mineral. It means these all minerals do not contain, they are opposite to non-metallic, कि इनमें चमक नहीं होती, ये धातु नहीं होते, ये मेटल को कंटेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, पोटाश हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, पोटाश हो गया, ठीक है, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, कोल, साल्ट कोल, ये सब जो है मिनरल्स हैं। नाइट्रेट, COL, कोल, साल्ट, ये सब ऐसे मिनरल्स हैं जो नॉन मेटालिक हैं। ठीक है, एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। सम मिनरल्स आल्सो फाउंड इन एलोवियल डिपोजिट इन रिवर बेड। इस तरीके से इनको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं बहुत ईजिली। देखिए हम दो चीज़ों को समझे हैं। व्हाट इज मिनरल? मिनरल भैया, मिनरल माने वो हर एक नेचुरली सब्सटेंसेज जिनका हम जनरली प्रयोग करते हैं। हम देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए, ये ना एल्युमिनियम, दैट इज एल्युमिनियम। इसका दिख नहीं रहा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद, अगर हम बराबर लगाया हूँ। यहाँ पर लगा है आयरन, हमारे बगल में डोर है, डोर का जो वो लगा है आयरन लगा है। ठीक है, आप सोना चांदी पहने होंगे तो भी लगा, कानों में पहनी होंगी लड़कियाँ, तो वो सब मिनरल्स हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स डायरेक्ट धरती के अंदर से नहीं मिले हैं। दीज मिनरल्स वी डिड नॉट गेट डायरेक्टली फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, के अंदर गए धरती के अंदर, या कहीं पर कहीं रखा है सोना, हो चलो सोना लेकर चले हैं बटोर करके। ठीक है, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू सम प्रोसेसेज टू गेट दीज ऑल मिनरल्स। ओके, टू गेट दीज ऑल मिनरल्स वी हैव टू डू समथिंग। ठीक है, हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कैसे होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मैंने बताया है कि मिनरल्स जो हैं वो धरती के अंदर से मिलते हैं। ठीक है, अब इनके लिए तीन प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस जो है क्वायरिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग। ठीक है, क्वायरिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग, क्वायरिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग। माइनिंग भी क्या होती है? दो तरीके से, ओपन पिट माइन, शाफ्ट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। देखिए अब इसको हम दोनों को बता दे रहे हैं, बहुत इजीली कंसंट्रेट करके समझ लीजिए। धरती के अंदर से फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ व्हेन वी एक्सट्रैक्ट माइंस we have to follow some processes and techniques. First, quarrying. If mineral is near about low deep down of the earth from the surface, मतलब थोड़ा सा है, मतलब जैसे गड्ढा खोद करके निकाल लो, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वायरिंग के प्रोसेस से निकाल लेते हैं। यानी क्वायरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, बहुत जहाँ से हम बहुत कम मतलब ज़्यादा कम खुदाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेट आप ये समझ लीजिए कि 50 मीटर, 100 मीटर्स, 100 मीटर्स के नियर अबाउट इतने में अगर और कम में निकालना हो तो आराम से खोद करके निकाल लेते हैं। तो इसको ढुआई भी कहते हैं, मतलब खोद करके ढुआई करके मिनरल्स को निकाल लीजिए। कोयले की खदाने से हो जाती है। ठीक है, माइनिंग जो होती है ये थोड़ी सी और डीप चली जाती है। माइनिंग जो होती है और डीप से जब निकालना होता है, और जब डीप और बढ़ जाती है, ये देखो मिनरल्स आर देयर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस, वेरी क्लोज टू, एंड सिंपली डिग आउट। तो वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ क्वायरिंग, ढुआई की या खुदाई की, उत्खनन का प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखोगे वन मिनरल्स और आर लोकेटेड शैलो डेप्थ एंड दे आर टेकन आउट टू रिमूविंग फ्रॉम द सरफेस लेयर, एंड इन दिस मेथड इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग मतलब जमीन के अंदर से। ओपन पिट माइनिंग का मतलब होता है, जैसे कभी कभी तालाब वाला आप कभी खोदे हुए देखे, तालाब
तालाब जो होता है, तालाब से अगर वहीं नीचे से निकल जाए कोई मिनरल, तो तालाब का जो स्ट्रक्चर है ओपन पिट माइनिंग है, ओपन कास्ट माइनिंग उसको कहते हैं। वो भी खुदाई की गई है बट दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग। एंड शाफ्ट माइनिंग मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुदाई होती है और वहाँ पर शाफ्ट चलता है, ठीक है, कि अंदर से जाएगा फिर नीचे लेकर के आएगा, मतलब इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, खुदाई। लेकिन और भी ज़्यादा जैसे पेट्रोलियम और गैसेज होता है तो धरती के अंदर छेद कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल माने छेद कर देते हैं, और छेद कर देते हैं तो बुर 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 हवा निकल करके क्या होती है, निकल करके चली जाती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो अब यहाँ पढ़ते देयर आर मेनी अंडरग्राउंड चैम्बर इन शाफ्ट, दीज माइनर्स आर लिफ्ट टू रीच दिस एंड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस डीप फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ वी हैव टू ड्रिल आउट। ओके, जैसे पृथ्वी है ना, तो यहीं पर से छेद कर देंगे, तो यहाँ से जितने मिनरल होगा सब बाहर निकल करके यहाँ पर अपनी रिफाइनरी में आकर के और कैद हो जाएगा। तो इसको ड्रिल कहते हैं, छेद करना धरती के अंदर छेद करना, और चाहे ऐसे काट देना, ऐसे। देखिए दो तरीके से हम दोनों का स्ट्रक्चर आपको हम बता दे रहे हैं। सपोज दैट ये पृथ्वी है, दिस अर्थ, अब यहाँ पर हम ऐसे छेद कर दिया, ऐसे छेद कर दिया, ठीक है, ये ड्रिल बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ड्रिल करके हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और यहीं बगल में अगर हम ऐसे कर दें, देखिए ये हो गया ओपन कास्ट माइनिंग। ये क्या हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। ये ड्रिलिंग हो गया, जैसे ड्रिलिंग हो गया, छेद करके निकाल लिया। देखो ओपन कास्ट माइनिंग हल्का ऐसे राउंड टाइप का, तालाब टाइप का निकाला, तो इसमें ढो करके निकालेंगे। अब यहाँ से ढो करके निकालें तो क्वायरिंग करेंगे। लेकिन अगर इधर से देखें और थोड़ा सा और गहरा ऐसे खुदाई हो जाए, ठीक है, लेयर बाय लेयर, और यहाँ पर लोग अंदर घुस करके जाएं, ऐसे निकाल करके ऐसे लेके आएँ, तो दैट इज सॉफ्ट माइनिंग। ओके, सॉफ्ट में लगे रहता है, आप गूगल पे सर्च करके दिखा दीजिएगा, अभी हम मैप पे नहीं दिखा सकते। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड 3 थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड। व्हाट इज मिनरल, type of mineral, it means metallic and non-metallic. Metallic minerals are further divided ferrous and non-ferrous, उनके examples को, and processes of digging out the minerals, 3 processes हैं, quarrying, mining and drilling। quarrying से क्या होगा, सिंपली खुदाई करके ढो लाओ। माइनिंग से क्या होगा, नीचे से निकाला जाएगा। माइनिंग 2 तरीके से हो सकती है, माइनिंग 2 तरीके से, सॉफ्ट माइनिंग और एक ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग। 10th क्लास में भी पढ़ोगे आप लोग। एंड ड्रिलिंग इट मीन्स कि उसमें छेद करके निकालना, ठीक है, छेद करके निकालना, 3 तरीके से। अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहाँ कहाँ इनका वो है, ठीक है। थैंक यू।